Hello students, I hope you all are good. Okay, so again I am here with one of the most important points of the first chapter, that is fundamentals. Before this video we have discussed about the distribution of profits as well as calculation and rules of interest on capital. So today we will discuss interest on drawing in detail, that how interest on drawing is calculated in case of partnership business. So before going to discuss interest on drawing, again let me clear one thing, what is drawing. Drawing means taking out money from the business for self purpose is called drawing. So in partnership firm, if there is any partner who is taking out money for his self purpose, for his residential purpose, then it will be called drawing of partner, drawing of that particular partner. And in partnership firm there may be agreement by the partners over interest on drawing, that if any partner will take out any amount from the partnership firm, he will have to bring interest over his amount, over his drawing amounts. So if partners have made an agreement regarding interest on drawing, only in that case interest on drawing will be charged from the partner who has taken out money from the partnership firm. And what are the rules in the absence of partnership deed? If there is no agreement regarding interest on drawing among the partners, so in the absence of agreement, no interest on drawing will be charged from any partners, चाहे वो साल भर में एक बार ड्राइंग करे या एक से ज्यादा बार ड्राइंग करे. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, then no interest on drawing will be charged from that particular partners. So it will be charged only in case of agreement. Now we are going to discuss that how many methods of calculating interest on drawings. Okay, methods. Methods of calculating interest on drawing. So there are two methods. Simple method and product method. Simple method and product method. These are the two methods. First one is simple method, second one is product method. We can use any method for our calculation of interest on drawing. The result will be same when we will calculate interest from any of the methods. Result will be same. So in simple method, how interest on drawing is calculated? In simple method, suppose if a partner is taking out money from partnership business on various times, during a year 4 to 5 times or more than that he is taking out money, so in that case the method will be used. अब इसमें इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों केसेस में कैसे निकालेंगे. तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपन में 100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड अपन में 12. दिस इज द फॉर्मूला of calculation of interest on drawing as per the simple method. Okay, if interest is to be calculated according to product method, then in that case formula will be interest is equal to total of products multiplied by rate. Rate means interest rate, that may be 8% per annum, 10% per annum, 6% per annum. So rate अपन में 100 multiplied by 1/12. यानी लास्ट में 1/12 करेंगे, 1 मंथ का निकालेंगे इसमें प्रोडक्ट मेथड में.
और इस तरीके से यहाँ अगर सिंपल मेथड यूज करेंगे तो सपोज इफ ए पार्टनर हैज taken out amount from partnership business on 1st January 2019 and year end is on 31st March 2019. So if he is taking out money on 1st January, that means from this 1st January till the end of the year period or month will be calculated. अब जनवरी से है, मंथ एंड ईयर एंड 31st मार्च को हो रहा है, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो 3 मंथ हुआ, तो लास्ट में ये 3/12. इसी तरीके से इफ ए पार्टनर इज टेकिंग आउट मनी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट मीन्स ऑन 1st अप्रैल, तो 1st अप्रैल से ईयर एंड तक कितना मंथ होगा, यानी टाइम पीरियड कितना होगा, 12 मंथ. तो 12 मंथ का मतलब इसमें पूरे साल का निकल कर आएगा. यही चीज अगर मान लो 1st अक्टूबर को निकालते हैं, ठीक है ना, इफ ए पार्टनर इज टेकिंग आउट मनी ऑन 1st अक्टूबर, देन 1st अक्टूबर को कैलकुलेट, 1st अक्टूबर निकालेगा तो अक्टूबर पूरा काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी हमारा पीरियड कितना होगा, 6 मंथ होगा, 6/12. ठीक है, सिंपल है ये. इसी तरीके से प्रोडक्ट मेथड, और ये मेथड कब यूज किया जाता है, ये मेथड प्रोडक्ट मेथड स्पेशली वहां हम यूज कर सकते हैं जहां कोई एक पार्टनर एक से ज्यादा बार ड्राइंग करता है. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इफ ए पार्टनर ए is taking out money 3 or 4 times in a partnership firm, or a partner is B, he is taking 2 or 3 times he is taking out money from the partnership business. So in that case, if means in case of multiple drawings, the method can be used for easy calculation. ठीक है, इसी तरीके से इसको हम सिंपल ड्राइंग के लिए भी, अगर एक बार ड्राइंग करता है तो भी इस फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सिंपली. अगर मल्टीपल ड्राइंग्स होती है, एक पार्टनर मतलब एक साल के अंदर अंदर एक से ज्यादा बार ड्राइंग करता है, तो भी इस केस में हम उस मेथड से, यानी सिंपल मेथड से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. बट ये है कि हर बार कई जितनी बार ड्राइंग करेगा उतनी बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, उस केस में जब मल्टीपल ड्राइंग्स करें तो ज्यादा सुटेबल फॉर्मूला ये होता है. इससे हमारी कैलकुलेशन क्या है, सिंपल हो जाती है. एक बार में ही हम सारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं. इसमें क्या होगा, अगर 4 टाइम्स ड्राइंग किया होगा तो 4 टाइम्स ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 4 टाइम्स में जो इंटरेस्ट आएगा उसका टोटल करेंगे, वही हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा. बट इसमें हमारा प्रोडक्ट मेथड में एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे और एक बार में ही पूरे साल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल मेथड, नाउ आई हैव टेकन वन एग्जांपल. There is a partner withdraw amount from partnership firm as follows. कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म से पैसा इस तरीके से निकालता है, मीन्स अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट की विड्रॉइंग वो कर रहा है. 1st अप्रैल ही इज टेकिंग आउट मनी 5,000. On 1st July 2018 he withdraw amount 8,000. On 31st August 2018 he withdrawn 6,000 and rest of the drawing he has made in this way. And in that case, if interest on drawing is 6% per annum, in that case see how interest will be calculated as per the simple method. So this will be, the information will be given in the question. इसको आप ऐसे 2 कॉलम में लिख लेंगे. ठीक है, इसी तरीके से एक तीसरा कॉलम क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, मतलब एक वर्किंग नोट का पार्ट होगा, लेकिन उसको सिस्टमैटिक वे में कैसे वर्किंग नोट करेंगे, तो इसका हम 3rd कॉलम एक बनाएंगे. ठीक है, इसके ये क्या होगा, पीरियड. पीरियड क्या होगा, मंथ्स लेफ्ट. ठीक है ना, कितने मंथ बचे हुए हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. यानी फाइनली इस 4th कॉलम में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा. ये पीरियड क्या होगा, पीरियड का मतलब ये है कि जिस पार्टिकुलर डेट पे पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है, उस डेट से लेकर के ईयर एंड की डेट में कितने मंथ बचे हुए हैं, मीन्स मंथ्स लेफ्ट. इफ ए पार्टनर इज टेकिंग आउट मनी ऑन 1st अप्रैल, देन फ्रॉम 1st अप्रैल टिल द 31st मार्च 2019 कितने मंथ हो जाएंगे, 12. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12. इसी तरीके से 1st जुलाई, इफ ए पार्टनर इज टेकिंग आउट मनी ऑन 1st जुलाई, तो 1st जुलाई से
31 मार्च ईयर एंड तक कितने मंथ्स बच जाएंगे? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये कितने हो जाएंगे? 9 मंथ्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगस्त, 31 अगस्त को ड्राइंग कर रहा है तो 31 को कर रहा है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो इसको छोड़ देंगे। अगस्त के बाद सितंबर से काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ। ठीक है, इसी तरीके से 31 दिसंबर को कर रहा है तो दिसंबर छोड़ देंगे, जनवरी से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 मंथ। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट फेब को ड्राइंग कर रहा है तो फर्स्ट फेब को कर रहा है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो फेब को काउंट करेंगे, फेब एंड मार्च, तो देयर विल बी 2 मंथ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। हम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली, अभी मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था इस पे? मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट अपन में 100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड अपन में 12, तो मैंने इस तरीके से फॉर्मूला बताया था। तो यह अमाउंट ऑफ ड्राइंग 5000, ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग 6%, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये देखो 12 अपन में 12 का मतलब ये पूरे साल की ड्राइंग करना है, तो इसमें फिर 12/12 करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सीधे हमारा थोड़ा और इधर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी ड्राइंग हो गई 300। इसी तरीके से ये हमारी 8000 का है, ठीक है, इसको लाइन खींच सकते हैं। इसी तरीके से 8000 6% मल्टीप्लाइड बाय पीरियड कितना है? 9 मंथ, 9/12। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 360। ठीक है, इसी तरीके से ये 6000 है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 6000, अगेन रेट 6/100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड कितना है? 7 मंथ, 7/12। $210। ठीक है, इसी तरह यानी इंडिविजुअली एक एक को हम कैलकुलेट करते जाएंगे। इसी तरीके से 10,000 की ड्राइंग है, ठीक है, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 3, पीरियड जो है वो 3 मंथ, 3/12। $150। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट ड्राइंग है कितने का? 15,000। $6/100 पीरियड है 2 मंथ, 2/12। ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा आ गया 150। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये सारा अमाउंट हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल कर लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। टोटल करेंगे 0, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1170। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हमको लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, तो हम कितना लिखेंगे? 1170, यानी ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, सिंपल मेथड से अगर कोई पार्टनर अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट ड्राइंग करेगा तो हम सिंपल मेथड से ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दे दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द प्रोडक्ट मेथड, या नहीं भी बोलता है तो भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम फिर से इसी एग्जांपल को लेकर के चलेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट जो होगा वो दोनों सेम होगा। इसका रिजल्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कितना आया है? 1170। ठीक है, 1170। So now we are going to
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द सेकेंड मेथड दैट इज प्रोडक्ट मेथड। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था एग्जाम्पल सेम है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट दैट इज 6% सेम होगा, और हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कंपेयर करेंगे कि जो हमारा लास्ट इंटरेस्ट आया था 1170 वो भी इस मेथड से भी वही आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रोडक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट के ड्राइंग पार्टनर ने किया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हमारे कॉलम कितने, अभी लास्ट जो सिंपल मेथड था टोटल कितने कॉलम हो रहे थे 4, इसमें भी हमारे कॉलम वही रहेंगे सेम, यानी थर्ड कॉलम जो होगा अगेन सेम होगा पीरियड के लिए, पीरियड या जिसको कह सकते हैं मंथ्स लेफ्ट, यानी जिस डेट पे ड्राइंग किया उस डेट से ईयर एंड तक कितने मंथ रह गए हैं उसका ये हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। इस मेथड में हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। ये हमारा, यानी इस तरीके से प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, जितना पीरियड आएगा उतने को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से तो सबसे पहला हमारा क्या है 12, ठीक है। इसी तरीके से जुलाई से हम देख रहे थे, जुलाई से हमारा कितना जाएगा 9 मंथ, ठीक है ना, जुलाई से लेकर ईयर एंड तक मार्च तक। अगस्त में, अगस्त को छोड़ देंगे फिर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हो रहा था 7 मंथ, ठीक है। इसी तरीके से दिसंबर 31 दिसंबर है, दिसंबर छोड़ देंगे, जनवरी से काउंट करेंगे तो कितना मंथ आएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट फेब को कर रहा है तो फेब काउंट करेंगे, फेब एंड मार्च तो 2 मंथ। ये हमारा क्या आ गया, पीरियड आ गया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला हुआ था, सिंपल मेथड से भी उसी तरीके से। अब ये हमारा जो है प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5000, ये कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 72,000। ये हमारा 42,000, ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा अगेन 30,000, ठीक। इसको एक एक को कैलकुलेट करके हमने क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट। अब याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला में क्या लिखा था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक ना, एज पर द प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ठीक है। फॉर्मूला इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, ठीक है। इसको टोटल करेंगे, ये हमारा आ गया 2,34,000, 2,34,000। अब इस पे हमको क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे साइड में हम निकालते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी 2,34,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे 1/12, यानी ये हमारा सिंपली एक बार कैलकुलेशन किया हमारा इंटरेस्ट। अब देखो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था 1170 और इस मेथड से भी कैलकुलेट किया, तो एक ही बार में कैलकुलेशन हमने एक बार में किया और हमारा 1170 का कैलकुलेशन हो गया। तो नाउ इट इज अप टू यू दैट विच मेथड you want apply in for your question, but sometimes you will be given question in the examination indicating the method that how you have to calculate interest on drawing, ठीक है।
तुम्हारे बुक में भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाइए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। और ये मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं, स्पेशली अब एक बार फिर से ध्यान से सुने एक चीज, कि ये मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब पार्टनर्स एक से ज्यादा टाइम ड्राइंग कर रहा होगा, प्लस दूसरी चीज ये होगी कि उनके ड्राइंग का जो ड्यूरेशन होगा, जो पीरियड होगा, वो सेम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो उनका अमाउंट का ड्राइंग का जो अमाउंट है दैट इज ऑल्सो नॉट सेम। ठीक है, अमाउंट इज वेरिंग एवरी टाइम। कभी 5000 की ड्राइंग कर रहा है, कभी 8000 कर रहा है, कभी 6000 कर रहा है, कभी 15,000, 10,000। इसी तरीके से 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ का ड्यूरेशन था, जुलाई में किया। इसी तरीके से जुलाई में 1 जुलाई को किया, 31 अगस्त को कर लिया, यानी ड्यूरेशन फिर 1 मंथ हो गया। ठीक है ना, जो इंटरवल है, ड्राइंग इंटरवल है, ये 3 मंथ के गैप पे ड्राइंग कर रहा था, यहाँ 1 मंथ के गैप पे ड्राइंग कर रहा है। तो जब गैपिंग, ठीक है ना, जो 2 अमाउंट का या 2 से ज्यादा अमाउंट का टाइम इंटरवल सेम ना हो और अमाउंट सेम ना हो, तब तो हम इस मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कभी कभी कोई पार्टनर होता है रेगुलर ड्राइंग करता है, जैसे कोई एक पार्टनर है, उसने फिक्स कर लिया है कि मैं हर महीने की 1st डेट को 5,000 रुपीज विड्रॉ करूंगा, या हर महीने की मिडिल में या हर महीने के एंड में मैं 1,000 रुपीज पर मंथ की ड्राइंग करूंगा। तो ये क्या है, हर मंथ ड्राइंग कर रहा है, हर मंथ की बिगिनिंग में या हर मंथ के एंड में कर रहा है, तो ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग इज सेम, और हर बार वो 1,000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम है। तो उसको जब अगर इस तरीके की ड्राइंग होगी तो उसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड अलग मेथड है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दैट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन टाइम इंटरवल एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर सेम। ठीक है, टाइम इंटरवल मीन्स मैंने अभी बताया था कि हर मंथ की किसी एक पार्टिकुलर डेट पे वो ड्राइंग करेगा और हर बार ड्राइंग का अमाउंट होगा वो सेम होगा। अभी हमने देखा था कि कभी 8,000 ड्राइंग, कभी 7,000, कभी 15,000, ऐसे नहीं होगा। एक पार्टनर होगा, वो क्लियर कर देगा कि हम हर महीने में 1,000 की ड्राइंग करेंगे, 2,000 रुपीज की ड्राइंग करेंगे। तो जब टाइम गैप या टाइम इंटरवल सेम हो, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी सेम हो, उस केस में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। किस मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना, वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पीरियड। ठीक, अब सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, पार्टनर ए withdrew rupees 1,000 in the beginning of each month। क्या दिया हुआ है, पार्टनर ए विड्रॉ रुपीज 1,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, फिर से ले लेते हैं कितना, 6% पर एनम। ठीक है, वीडियो में बाहर गली की आवाज आती होगी तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन का सेशन है, बच्चे फ्री हैं तो गली में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी चीजें अवॉइड करके चलना पड़ेगा। पार्टनर ए विड्रॉ 1,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और इंटरेस्ट रेट हमारा 6। अब देखो क्या कह रहा है, 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग में, हर महीने की स्टार्टिंग में जो पार्टनर ए है वो पैसा निकाल रहा है, और वो हर महीने। तो यानी कि क्या है, इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम है कि हर मंथ वो पैसा निकालता है। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है कि हर मतलब 1,000 रुपीज ही ड्राइंग करेगा। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया एवरेज पीरियड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड क्या होता है, अब सबसे पहले एवरेज पीरियड से अगर कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू एनुअल ड्राइंग।
एनुअल, ध्यान रखना है, एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट अपान में 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। कितने मंथ का निकालेंगे? एवरेज पीरियड के हिसाब से निकालेंगे। एवरेज पीरियड अपान में 12। ये हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। जब ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब एनुअल ड्राइंग का मतलब क्या है? 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने में 1000 ड्राइंग करता है, तो 12 मंथ में कितना ड्राइंग करेगा? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल ड्राइंग हमारी हो जाएगी कितना? 12,000, ठीक है। अभी इसके डिस्कशन से पहले एक चीज, एनुअल ड्राइंग तो समझ गए, रेट समझ रहे होगे, रेट दिया रहेगा 6%, 8%, 10%। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लो। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ऐसे देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसका क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब देखो इसका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कह रहे हैं 1000 निकाल रहे हैं इन द बिगिनिंग, हर महीने की स्टार्टिंग में। तो अगर हर महीने की स्टार्टिंग में पहली डेट पर पैसा निकाल रहा है तो साल की पहली यानी ईयर की पहली ड्राइंग कब होगी? ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को करेगा ड्राइंग। 1 अप्रैल से लेकर के टाइम लेफ्ट मतलब ईयर एंड खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है? पूरा 12 मंथ। अप्रैल को 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, 31 मार्च को काउंट करेंगे, 12 आएगा पूरा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा? 12। अब अगर हर मंथ की फर्स्ट डेट पे ड्राइंग कर रहा है तो ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होगा? मार्च। तो 1 मार्च को अगर ड्राइंग करेगा तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च का ड्यूरेशन कितना मंथ होगा? पूरा कंप्लीट 1 मंथ, ठीक है। फर्स्ट यानी 1 मार्च को कैलकुलेट कर ड्राइंग कर रहा है, मार्च एंड हो रहा है 31 को, तो 1 मंथ का टाइम आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 13/2, जिसको कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 मंथ्स, ठीक है। 6.5 मंथ्स। अब इसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल ड्राइंग 1000 हर महीने कर रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000। 6% दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट। इसी तरीके से ये एवरेज पीरियड फॉर्मूले में दिया हुआ है 6.5 अपान में 12, 6.5 अपान में 12, ठीक है। 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये देखो 6.5 है, पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है नीचे उतने 0 बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। हम पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद 5 1 डिजिट है, तो उस 1 डिजिट के बदले में हम क्या करेंगे? 1 0 नीचे लिख देंगे, जो हमारा पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। पॉइंट हमारा खत्म हो गया। इस 0 से एक 0 को फिर से कैंसिल करेंगे, ठीक है। 12 से 12 थोड़ा क्रॉस होगा और ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा कितना? 390, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा अगर अमाउंट और टाइम इंटरवल सेम होगा तो, ठीक। अब इसको लेकर के एवरेज पीरियड को लेकर के मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से ही तुम्हें बुक के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। इसमें केस अलग अलग हो सकते हैं। कोई पार्टनर है कि बिल्कुल फर्स्ट डे को ड्राइंग कर रहा था, कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। पार्टनर विड्रू इन द बिगिनिंग हम कर चुके हैं, मिडिल कर लेते हैं, ठीक है ना। इन द मिडिल ए पार्टनर विड्रू इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। पैसा जो है वो वही सेम अमाउंट 1000, 2000, 5000 जो भी है हर महीने। मिडिल में अगर ड्राइंग करेगा तो अगेन वही है, ठीक है। जो
टाइम इंटरवल है वो सेम है, हर मंथ की 15th को करेगा, हर मंथ की 15th को ड्राइंग करेगा, अमाउंट भी सेम है, तो एवरेज पीरियड ही कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हमारा एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फॉर्मूला भी मैंने क्या लिखा था, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब ये बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा आप, हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग करेगा, तो फर्स्ट ड्राइंग साल की कब होगी, 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से करेगा तो 15 अप्रैल से ईयर एंड 31 मार्च तक काउंट करेंगे। तो अप्रैल का हमारा मतलब हाफ मंथ खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11.5, ठीक है, काउंट कर लेना 11.5। अगर हर मंथ की मिडिल में कर रहा है तो ईयर का लास्ट मंथ अप्रैल होगा, ऑब्वियसली सॉरी मार्च होगा, मार्च में 15th को अगर विड्रॉइंग करेंगे तो 15th मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का टाइम कितना बच रहा है, हाफ मंथ, 0.5 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ये हमारा कितना हो जाएगा 12/2। तो उस केस में हमारा एवरेज पीरियड 6 मंथ्स बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम केस लेते हैं, इफ पार्टनर withdrew, ठीक है, इफ पार्टनर withdrew at the end of each month, ठीक है। पार्टनर मंथ की एंड में, हर मंथ की एंड में अगर ड्राइंग करता है तो अगेन टाइम इंटरवल सेम है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, उस केस में भी एवरेज पीरियड से ही कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पीरियड हमारा कैसे होगा, ठीक है ना, हर मंथ की एंड में कर रहा है तो पहला मंथ क्या है अप्रैल, अप्रैल के एंड में करेगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से ईयर एंड 31 मार्च, कितना मंथ हो जाएगा, अप्रैल पूरा छोड़ देंगे, मई से काउंट करेंगे, मई से 31 मार्च काउंट करेंगे तो कितना हो गया 11 मंथ, ठीक है। अगर हर मंथ के एंड में ड्राइंग करेगा तो ईयर का लास्ट मंथ मार्च हो जाएगा, मार्च के एंड में ड्राइंग करने का मतलब 31 मार्च को करेगा, तो 31 मार्च से 31 मार्च का ड्यूरेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, गैप कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 11/2, जिसको हम कट करेंगे, ये हमारा कितने मंथ का बचेगा 5.5 मंथ्स, ठीक है। तो अगर मंथली ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड अलग अलग केस में इस तरीके से होगा, वहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन वहाँ दिखा देना, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला अप्लाई करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। इसी तरीके से कुछ और केस बन सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मंथली ड्राइंग है तो क्वार्टरली भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ है इफ अ पार्टनर withdraws अमाउंट, जैसे मान लो withdraws ₹5,000 at the beginning of each क्वार्टर। यानी ये क्लास देखने के बाद, आज की क्लास देखने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। इफ ए पार्टनर विड्रॉ 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, कह रहा है एक पार्टनर है 5,000 हर मंथ, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में वो विड्रॉ करता है। क्वार्टर मीन्स क्या होता है 1/4, यानी साल में हर मंथ वो ड्राइंग नहीं करता है बल्कि क्वार्टरली ड्राइंग करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईयर में कितने हमारे क्वार्टर होते हैं, तो हर ईयर में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी हर क्वार्टर कितने मंथ का होता है 3 मंथ्स का, जैसे अप्रैल मई जून, ठीक है। मैं क्वार्टर एक बार लिख करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, अप्रैल मई जून, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड क्वार्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो 3 मंथ्स का साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कोई पार्टनर है वो हर मंथ की ड्राइंग नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है हर क्वार्टर पे जाकर के फर्स्ट डे को ड्राइंग कर ले रहा है। यानी कि इसमें भी
टाइम इंटरवल ड्राइंग का क्या है, सेम है। हर 3 मंथ्स के बाद वो ड्राइंग करता है, ठीक है, हर 3 मंथ्स के बाद ड्राइंग करता है। हर 3 मंथ्स के बाद कितने की ड्राइंग करता है, 5000 की ही करता है। ये नहीं कि एक क्वार्टर में 5000, अगले क्वार्टर में 10000, तो फिर हमको पीछे वाले मेथड से करना होगा। लेकिन अगर अमाउंट भी सेम है तो हमको एवरेज पीरियड से कैलकुलेट करना होगा। तो आगे इस केस में एवरेज पीरियड हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो फॉर्मूला सेम है एवरेज पीरियड में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर हर महीने की बिगिनिंग में, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को बिगिनिंग का मतलब बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेगा। एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब जून से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अप्रैल में 1 अप्रैल को करेगा तो 1 अप्रैल से लेके एंड 31 मार्च तक कितना हो जाएगा, वही 12 मंथ पूरा। इसी तरीके से अगर हर बिगिनिंग में, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग करता है तो लास्ट क्वार्टर मैंने क्या बताया था, जनवरी फरवरी मार्च। तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना मंथ हो जाएगा, 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 7.5 मंथ से, ठीक है, 7.5 मंथ से। अब जैसे इंटरेस्ट निकाल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या, इसमें मैंने फॉर्मूला बताया, एनुअल ड्राइंग। अगर 5000 क्वार्टरली निकाल रहा है तो साल भर में कितनी बार पैसे निकालेगा, क्या 12 टाइम्स निकालेगा जैसे लास्ट टाइम होता, नहीं। पर मंथ होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर क्वार्टर निकालेगा तो कितने, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5000 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एनुअल ड्राइंग उसकी कितनी बनेगी, 20,000, ठीक है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था 6% अगर दिया है। इसी तरीके से इसका एवरेज पीरियड कितना है, 7.5/12, ठीक है। 2 0 कैंसिल हुआ। ये पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद 5 1 डिजिट है, 0 लगाएंगे नीचे, इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 750 रुपीज का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ठीक। इसी को अगर बिगनिंग हटा करके मिडिल कर दिया जाए, ठीक है। कोई पार्टनर है 5000, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकलता है, ठीक है। क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, 15 मई, ठीक है ना। 3 महीने का जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है वो क्या होगा, 1.5 मंथ्स के बाद, यानी अप्रैल पूरा छोड़ करके 15 मई को, यही ना मिडिल आ रहा है। एक क्वार्टर में 3 मंथ है तो 1.5 मंथ पे जाकर के उनका बिगिनिंग मिडिल हो जाएगा। तो 15 मई को जब करेगा तो उस केस में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे 15 मई को कर रहा है तो 15 मई को कर रहा है तो 15 मई से 15 मई ले लेंगे, मई कंप्लीट होने में हाफ मंथ हो जाएंगे। उसके बाद जून से पूरा काउंट करेंगे, ठीक है। 15 मई से लेकर के 31 मार्च तक का पूरा ईयर एंड तक काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 मंथ्स। क्यों, क्योंकि हाफ मतलब पूरे ईयर में 1.5 हटा दो, 12 में से 1.5 मंथ हटा देंगे तो 10.5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग कर रहा है तो लास्ट क्वार्टर हमारा क्या है, जनवरी फरवरी मार्च। 15 फेब को करेगा तो 15 फेब से 31 मार्च तक कितना मंथ बचेगा, फेब आधा और पूरा मार्च 1.5, ठीक है। उस केस में ये कितने का हो जाएगा, एवरेज पीरियड 6 मंथ का हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर बोले लास्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो उस केस में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या है, जून का एंड मतलब 30 जून को करेंगे तो 30 जून से 31 मार्च कैलकुलेट करेंगे। तो यानी जून के एंड में अगर ड्राइंग कर रहा है तो जून को भी काउंट नहीं करेंगे, जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई से काउंट करेंगे तो कितना मंथ आएगा, 9 मंथ,
ठीक है। और अगर हर क्वार्टर की एंड में कर रहा है तो लास्ट क्वार्टर का कौन सा क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च, तो लास्ट क्वार्टर की एंड में यानी 31 मार्च को ड्राइंग करेगा, तो 31 मार्च की ड्राइंग से 31 मार्च तक का टाइमिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो ये हमारा 4.5 मंथ्स, ठीक है, 4.5 मंथ्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल पे अगर दिया होगा, मतलब टाइम इंटरवल सेम होगा और इसी तरीके से अमाउंट सेम होगा, तो इस तरीके से एवरेज पीरियड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक और केस बन सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फॉर एवरेज पीरियड देयर में बी सम अदर केसेस। उस केस को हम समझने के लिए सीधे अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे। और जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है, एक बार मैं शो कर दे रहा हूँ, आप मोबाइल पे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 21 हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 21 में यही है कि एक्स जो पार्टनर है, ही इज टेकिंग मनी 4000 पर मंथ एट द एंड, एट द बिगिनिंग। ओके, एक्स जो है वो बिगिनिंग में कर रहा है फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज, अगेन मेथड वही बनेगा एवरेज पीरियड वाला, क्योंकि 6 मंथ तक रेगुलर 1 मंथ पे ड्राइंग हो रही है, हर मंथ की बिगिनिंग पे, और 4000 पे इसका हर टाइम में। तो इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिल्कुल बिगिनिंग से कर रहा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ में, तो यानी वो अप्रैल हमारा स्टार्टिंग के ही 6 मंथ में आता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहे फर्स्ट 6 मंथ के का जो फर्स्ट 6 मंथ आएगा ईयर का, उसमें 6 मंथ कौन सा होगा, लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर होगा, यानी सितंबर की फर्स्ट में, तो 1 सितंबर को काउंट करेंगे। तो 1 सितंबर को अगर ड्राइंग करेगा तो सितंबर भी काउंट करेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस तरीके से कितना आएगा, 7 मंथ। तो 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 9.5 मंथ्स। इसी तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अब एनुअल साल भर में कितनी ड्राइंग करेगा, 4000 6 महीने तक कर रहा है, तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में 10%, 10 अपन एवरेज पीरियड 9.5 अपन 12, ठीक है। ये हमारा 10 नीचे लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है, यानी इसका एनुअल, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1900, ठीक है। इसी तरीके से y और z का भी कैलकुलेट कर लेंगे। y में एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, y कर रहा है एंड में, ठीक है ना, y कर रहा है 4000 पर मंथ एट द एंड। एंड में जब ड्राइंग करेगा तो पहली ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल के एंड में करेगा, फर्स्ट मंथ वही अप्रैल के एंड में करेगा, तो ईयर एंड तक कितना मंथ हो जाएगा, 11 मंथ, तो ये 11 होगा, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट 6 मंथ में सितंबर आता है, तो सितंबर के लास्ट में करेगा, एंड में कर रहा है तो सितंबर के लास्ट में करेगा, सितंबर छोड़ देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इस तरीके से 6 मंथ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 + 6, ठीक है ना, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा एवरेज पीरियड बनेगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोई करेगा, जैसे जेड कर रहा है, तो बिगिनिंग में करेगा तो पहली ड्राइंग कब करेगा, 15 अप्रैल को करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मिडिल में कर रहा है, जैसे जेड मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, तो मिडिल के लिए क्या होगा, फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा,
15 अप्रैल को करेगा। तो 15 अप्रैल से मार्च में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 सॉरी कितना हो जाएगा 11.5, ठीक है। 11.5 प्लस जो लास्ट ड्राइंग करेगा सितंबर के मिड में करेगा तो कितना हो जाएगा 6.5। तो ये 11.5 प्लस 6.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वो 2 से डिवाइड करके एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और लास्ट में जाते जाते एक चीज और बताना है कि अगर कोई पार्टनर है वो इस तरीके से ड्राइंग नहीं कर रहा है, साल भर में डेट उसकी पता नहीं लग रही कि ड्राइंग कर रहा है कैसे कर रहा है। जैसे दिया है X withdrew ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन अगर इस तरीके से देता है X withdrew ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 पूरे साल में उसने ड्राइंग किया, डेट नहीं दिया है कि 10,000 किस किस डेट पे और कितना कितना अमाउंट ड्राइंग कर रहा है, सीधे पूरे साल भर की ड्राइंग दिया है 10,000। जब डेट क्लियर ना हो तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एवरेज बेसिस पे निकालते हैं। तो हमारा क्या होगा, वही फॉर्मूला सेम रहेगा, ड्राइंग 10,000 के किया है, रेट रहेगा। यहाँ पे एवरेज पीरियड नहीं निकालेंगे बल्कि वो एवरेज रहेगा 6/12, क्या है 6/12 करेंगे। जब डेट नहीं दिया होगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करोगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट करके कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।